Hi, in the last video lecture, this book 1, we were continuing, and this name of the book, Indian Constitution at Work. And in this book, chapter number 4, Executive, that was going on, and today we will have the last portion of this chapter. That is executive chapter का last portion जो था, that was permanent executive bureaucracy that we were talking about. And you know that permanent executives are not elected. They are selected through an exam. They are appointed for a fixed term of period. They have got no situations like the political executives. These members are also part of executive. They look after the implementation part of the policies. And today further some information I have provided already in the last lecture, some more details regarding permanent executive. This permanent executive or Indian bureaucracy, they have told some information. He writes some information about this one, their procedure appointment, who are involved in this one, how they are removed, like that. So write a question might come, ki write some information about the Indian bureaucracy. Then what you have to write? First sentence, it is a very complex system, and Indian bureaucracy is having the all India, इसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, that is all India services, state services, then employees of the local government, then technical and managerial staff who are working in the public sector undertakings, they are also part of this one. हमारे जो constitution makers जो थे, they were aware about the importance of non-partisan and professional bureaucracy. Non-partisan मतलब जो ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो राजनीतिक नहीं हो, गैर राजनीतिक हो और प्रोफेशनल हो, उसकी इम्पोर्टेंस को वो समझते थे. पार्टीशन जूनियर क्लास में यू माइट हैव रेड, हैविंग योर इन्वॉल्वमेंट, टोटल अटैचमेंट और टोटल सपोर्ट टू सम ग्रुप. तो वो राजनीतिक पार्टियों के सपोर्टर्स नहीं होने चाहिए और प्रोफेशनल होने चाहिए, इस बात को वो समझते थे. और मेंबर्स वांटेड दैट सिविल सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं, members of the civil constitution wanted that this civil servant should be elected impartially, बिना किसी भेदभाव के उनका सिलेक्शन होना चाहिए on the basis of merit, on the basis of merit. इसी पर्पज से for this purpose UPSC Union Public Service Commission was set up to conduct the process of recruitment of the civil servants for the government of India. और इसी तरह से in the same way public service commission was also set up at the state level to elect the bureaucrats for the state services. And members of this civil services are appointed for a fixed term. ये पहले भी बोल चुका था. और they are appointed for a fixed term. गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं, रिटायरिंग एज तक दे कैन वर्क. एंड इनका जो रिमूवल होता है, सस्पेंशन, इनको हटाया कैसे जा सकता है, दैट दिस मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज कैन बी रिमूव्ड थ्रू द इंक्वायरी. थॉरो इंक्वायरी होगा बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. उसके द्वारा अगर प्रूफ हो गया कि दिस पर्सन इज रॉन्ग, देन ओनली दे कैन बी रिमूव्ड. और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, दे वांट एफिशिएंट एंड मेरिट वन फॉर द योग्यता वाले और क्षमता वाले, अच्छी कुशलता वाले जो थे सिविल सर्वेंट जो थे, दे वांट फॉर द रिक्रूटमेंट कि अच्छी योग्यता और अच्छी क्षमता वाला मेंबर उनको मिले रिक्रूटमेंट के अंदर. बट अलॉन्ग विद दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, दे ऑल्सो वांटेड that all the section of the society should get an opportunity to become the part of public bureaucracy. इसी पर्पज से constitution makers provided the reservation for the Dalit people and for the Adivasis, SC and ST रिजर्वेशन उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया. और सेम
some other weaker section of the society like women and OBC, other backward classes, उनके लिए भी some reservation was provided in these services, or this all thing was done to ये सब चीज़ें जो की गई उससे ये बात निश्चित होती है that this bureaucracy will be more representative, and social inequalities will not come in the way of the recruitment of the civil services. सामाजिक असमानता इसके रास्ते में, सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के रास्ते में नहीं आएगी. For that purpose all this reservation was done. Now next topic regarding Indian bureaucracy only, classification of the civil services. You can classify this one into three groups. Number 1, all India services. Number 2, central services. Number 3, state services. All India services में we have got IAS, Indian Administrative Service, IPS, Indian Police Service. Central services में we have got Indian Foreign Service, IFS, and IRS, Indian Revenue Service. And third one, state services, जहाँ पे सेल टैक्स ऑफिसर्स और भी दूसरे टाइप के ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. एंड जो लोग दोज पीपल who are इसके ऊपर नोट, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. सो पेज नंबर 96 in the book, first paragraph is having this answer. So what you have to write? What you have to write in this one? You have to write in this one that UPSC is responsible for the Indian Administrative Services and for the Indian Police Services, and these two services are the backbone. ये रीढ़ की हड्डी है of the higher bureaucracy in the states. स्टेट्स के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके हायर लेवल का अपॉइंटमेंट जो होता है दैट इज़ बाय द IAS एंड फॉर द IPS, इनके द्वारा जाता है. आपको पता होना चाहिए जो कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है. और कलेक्टर जो होता है जनरली दैट इज़ एन IAS, वो IAS ऑफिसर होता है. और दिस पर्सन IAS इज़ वर्किंग under the conditions laid, service condition made by the government of India. सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडीशंस बनाती है उसके अंदर में काम करता है. भले ही वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, बट ही इज़ वर्किंग अंडर द सर्विस रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. IAS और IPS ऑफिसर जो हैं दो दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इनको वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. और जब भी रिक्वायर्ड होगा दे कैन ऑल्सो गो बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो वापस सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हैं, भले वो स्टेट में काम कर रहे हैं, बट दे कैन गो बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ओनली टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द IAS एंड IPS. इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कैन नॉट बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. IAS और IPS के अलावा जो कि UPSC अपॉइंट करती है, देयर आर सम अदर ऑफिसर्स ऑल्सो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. For example, in Rajasthan we have got RPSC, Rajasthan Public Service Commission. तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी हर स्टेट के पास एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है. और जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे राजस्थान में होता है तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट दिस ब्यूरोक्रेट्स फॉर द सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ द राजस्थान. और ये जो फीचर है ब्यूरोक्रेसी का, दैट control of the central government over the administration of the states, that strengthen the bureaucracy. ये जो ब्यूरोक्रेसी का खास बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है that control the administration of the state, that makes the bureaucracy system in India more
स्ट्रांग, वो भारत में ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को और मजबूत बनाता है. नाउ some more information about bureaucracy. Bureaucracy एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सरकार का साधन है, थ्रू विच गवर्नमेंट implement its welfare policies. Government provide the welfare policies to the common people of the country. वहाँ तक पहुँचती है थ्रू विच. और लेकिन अक्सर ये देखा गया, बट इट इज़ नोटिस्ड दैट ये जो लोग होते हैं, कॉमन पीपल जो होता है, दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक पहुंचने में उनको एक भय रहता, डर रहता है. और कॉमन एक्सपीरियंस, एक आम आदमी का अनुभव बताता है दैट ब्यूरोक्रेसी जो है, इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स. ब्यूरोक्रेसी आम आदमी की उम्मीदें और मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है. सो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैन बी सेंसिटाइज्ड. मतलब आम आदमी की उम्मीदों को कैसे संवेदनशील बनाया जा सकता है, कैसे पूरा किया जा सकता है, कैसे इस ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है. अगर if democratically elected government, what answer you have to write, that is given in the book in page number 96 only. Slides में आप writing some important points. So democratically elected government जो है should control the bureaucracy, और some of these problems can be effectively handled. अगर democratically elected government इस ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करेगी तो कुछ प्रॉब्लम इसको लेकर कि ब्यूरोक्रेसी जो है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव, नॉट सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल, दैट प्रॉब्लम कैन बी हैंडल इफेक्टिवली. तो उनमें से कुछ समस्याओं को आप कुछ इफेक्टिव वे में हैंडल कर सकते हो. और दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम और है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, बिकॉज ऑफ दैट दिस ब्यूरोक्रेसी बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने की वजह से ये जो IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, ये पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के हाथ में खिलौना बन जाते हैं. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हमारी कंट्री के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड वन मशीनरी, इंडिपेंडेंट मशीनरी बना रखी है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ दिस पीपल, for the recruitment of IAS and IPS, and for the recruitment of the administrative officers. But हमारे मतलब ये बना रखा है कि इनको अपॉइंट करने के लिए कि इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडी होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैनी पीपल थिंक दैट कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है. नो प्रोविज़न इज़ देयर टू प्रोटेक्ट दिस सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिक्स. सो वो अपनी ड्यूटीज़, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिशियंस, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ प्रॉपरली. एंड इट इज़ ऑल्सो फेल्ट, और ये महसूस किया गया, इट इज़ ऑल्सो फेल्ट दैट टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी जो है, जनता के प्रति उनकी कुछ उत्तरदायित्व होना चाहिए. उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर नो सच प्रोविजंस आर देयर. ये महसूस किया गया है कि देयर आर नो प्रोविजंस टू मेक श्योर दैट दिस ब्यूरोक्रेट्स विल बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन. ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, इसके लिए भी कुछ खास दिया हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. एक उम्मीद है, देयर इज़ वन एक्सपेक्टेशन दैट इफ मेजर्स लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ऐसे कुछ अगर नियम सामने आएंगे तो वी कैन मेक द ब्यूरोक्रेसी मोर रिस्पॉन्सिव एंड मोर अकाउंटेबल. ज़्यादा उत्तरदायित्व वाली और ज़्यादा जिम्मेवारी लेने वाली ब्यूरोक्रेसी हम बना सकते हैं ऐसे कुछ रूल्स के, ऐसे कुछ नियमों के द्वारा, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत. Now, last portion, conclusion of the chapter, that it is a very powerful institution of the government. Executive enjoy a very greater power in comparison to other parts of the government, or there is a need
to have a democratic control over the executive. और ये कंक्लूजन है चैप्टर का कि इसके ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने बहुत दूर तक देख लिया था और फॉरसाइट था, मतलब दे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट विद फॉरसाइट। उन्होंने बहुत दूरदृष्टि के साथ सोचा हुआ था कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी पुट प्रॉपरली अंडर द रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव। वो लेजिस्लेटिव के अंडर में कंट्रोल में होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव, वरना वो डिक्टेटर टाइप बन सकती है। और इसी वजह से पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम वाज सेलेक्टेड इन आवर कंट्री। पार्लियामेंट्री, आपको मालूम है पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, वो हमने चूज़ किया। और 3 चीज़ें, नंबर 1 पीरियोडिक इलेक्शंस, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ओवर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, पावर की एक्सरसाइज करने के ऊपर संविधान की अंकुश रहेगा। और एक थर्ड 1 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप राजनीति करोगे तो एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम अनरिस्पॉन्सिव। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन विल नेवर बिकम अनरिस्पॉन्सिव। that is the end of this chapter, executive. Thank you and have a nice day. Till we will meet after half-yearly exams for the new chapter.